electric field intensity at any point on the axis of charged disk. ओके, तो ये काम हमें करना है। तो चलिए इसकी बात करेंगे हम। हम क्या निकालने जा रहे हैं आज? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क. ओके, suppose this is the disk, just like this watch. This is the disk and we have to calculate electric field intensity. This is the disk, okay, and we have to calculate electric field intensity at the axis of this disk. Okay, it means this is the axis, this is the axis of this disk. Okay, we have to calculate the electric field intensity at this axis, as you see here. Okay, this is a disk, a charged disk which contains q charge. Okay, and we have to calculate electric field intensity on the axis of this at any point, as you wish. Any point we have to calculate. Suppose this at this point. Okay, now suppose this is the disk, circular disk is this. We take a elemental ring. Suppose the center of this disk is this and the radius is a. The radius of this disk is a and the center is O. Okay, then we take what? We take a disk, a elemental ring, okay, of this disk. This, okay, suppose the radius of this elemental ring is small r. Small r is the radius of this ring. Okay, and we have to find electric field intensity due to whole disk at any point P. ठीक है, electric field intensity at any point P we have to calculate it. So what we can do? Firstly, we calculate the area of this ring, elemental ring. Area of this elemental ring. Suppose the thickness of this ring is dr. The thickness of this is dr. Dr is this thickness. Okay, so we have to calculate this area. Now area of elemental ring, is what? The circumference is 2 pi r because the radius is r. 2 pi r into the thickness dr. This is the area of this
elemental ring, and we suppose the total dq charge is contained by this. Total dq charge is contained by this elemental ring of radius small r. Okay, and the radius of disk is a. Now we have to calculate the value of dq, and we know the charge density, surface charge density. We know surface charge density sigma equals to charge per unit area. Okay, so for this ring, charge is dq and the area is 2 pi r dr. The area is 2 pi r dr. 2 pi r dr. So the value of dq is nothing but sigma into 2 pi r dr, where sigma is charge density of disk and dq is charge contained in this elemental ring of thickness dr and radius r. This is the equation number 1. As you know, electric field intensity at point P due to a ring, electric field intensity at any point P due to a ring, if this distance is x, then electric field intensity at P due to this ring is, suppose D, and D is nothing but what? K Q. As we calculated, the electric field intensity due to a charge ring is kqx upon x square plus r square to the power 3 by 2, as we calculated. So for this case, at the place of q, what we take? dq. So k dq x upon x square plus r square to the power 3 by 2. This is the electric field intensity at P due to the elemental ring. Okay? Now, the electric field intensity at P due to all ring we have to calculate it. All disk, not ring. Firstly, we put the value of dq here. We use the equation number 1 in this equation 2. Using 1 into, we get, what we get? D equals to K, and at the place of dq, sigma 2 pi r dr into x divided by x square plus r square to power 3 by 2. Okay? Now the net electric field intensity, due to all disk. Now electric field intensity at P due to all disk is what? We integrate it from 0 to a. Okay, so
E is nothing but integration of dE from 0 to a. Integration of dE from 0 to a, and we put this equation 3. We use the equation number 3 here. Okay, E 0 to a, at the place of dE we write k sigma 2 pi r dr into x divided by x square plus r square to the power 3 by 2. Okay, we take out all the constants from the integration. It means k is constant, sigma is constant, 2 pi, ओके, आर डी आर को वहीं रहने देंगे, x कॉमन आएगा. इंटीग्रेशन 0 to a आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 by 2. अब देखो बच्चों, अब फिजिक्स का काम खत्म, फिजिक्स का काम खत्म हो चुका है रिंग का. अब आपको इस डिस्क की वजह से पी पे अगर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपको अब इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसके आगे सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यहीं पे अटक जाओगे. ठीक है, तो चलिए उसको भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते. ये वाली चीज हमारे लिए चैलेंज है, अगर बायो वाले हैं थोड़ा सा और चैलेंजिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत आसान हो जाएगा ये काम. ठीक है, इक्वेशन नंबर कुछ इसको दे दो, 4 दे दो, इक्वेशन नंबर 4. ध्यान से बिल्कुल देखो आप, कुछ दिक्कत नहीं होगी. लेट मान लेंगे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ये टी के बराबर है, ऐसा मान लेंगे. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है, टी के बराबर है. क्लियर. अब देखो x क्या है, इसमें कांस्टेंट है, इसलिए इसलिए इस वाले x को मैं बाहर ले लिया था, लेकिन अंदर वाले को इसके साथ था, इसलिए इसको मैं अलग नहीं कर सकता. तो ये x कांस्टेंट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो x तो 0 ही होना है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. तो आप देखिए, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन डी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा अगर, तो dt अपॉन डी आर जो आएगा वो आएगा आपका 2r. क्या आएगा, 2r, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और r पे पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2r होता है. आप जानते हैं भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, यही तो होता है. वही काम यहाँ होगा. r स्क्वायर है तो n क्या है, 2 है, तो 2 पहले लिख लोगे, फिर 2 माइनस 1 तो 1, तो 2r. ओके, so we have to calculate r dr. So from here r dr is nothing but dt by 2, as you see here, dt by 2. How? This dr is shifted towards this side and 2 is shifted towards this side. If 2 comes here, it means dt by 2, and dr goes there, r dr. r dr equals to dt by 2. These two important points we have to use in equation number 4. We have to use in equation number 4. Okay? Note down. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. देखिए बच्चों, अगर इन दोनों का मैं इस्तेमाल करूंगा इक्वेशन नंबर 4 में, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. E इक्वल्स टू के सिग्मा 2 पाई x
ठीक है, के सिग्मा 2 पाई एक्स, और आर डी आर की जगह क्या लिखोगे, डी टी बाई टू लिखोगे, आर डी आर की जगह क्या लिखोगे, डी टी बाई टू। तो इंटीग्रेशन 0 टू ए डी टी बाई टू, ओके, एंड एट द प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर व्हाट वी राइट, टी, इट मीन्स टी अपॉन टी एंड टू द पावर 3 बाई टू, टी टू द पावर 3 बाई टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू के सिग्मा 2 पाई एक्स, सही से थोड़ा लिखेंगे इसको, 0 टू ए था जो, ठीक है, सही से थोड़ा लिख लो, ठीक है। लिमिट भी चेंज हो सकती थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लिमिट भी यहीं चेंज कर देते, लेकिन अभी हम चेंज नहीं करेंगे आप लोगों के लिए थोड़ा सा, ठीक है, मैथमेटिकल के लिए परफेक्ट है, तुरंत लिमिट चेंज कर देंगे, ठीक है। आपको बिना लिमिट चेंज करे अभी उसकी टी की वैल्यू मैं रख दूंगा इंटीग्रेट करने के बाद, तो आसान हो जाएगा काम, ठीक है, लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही रहने दो। चलो, तो ये जो आएगा आपका देख सकते हो आप 1/2, देखो यहाँ पे है तो बाहर आ जाएगा, 2 को बाहर ले लो, ठीक है, तो बचा डी टी। अब देखो ये टी पावर 3/2 है, ऊपर जाएगा, तो टी पे पावर -3/2 डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन आता है, माहिर है इंटीग्रेशन में, कोई समस्या नहीं है आपको इंटीग्रेशन करने में। इंटीग्रेशन क्या होता है आप देख लो, x टू द पावर n dx का अगर इंटीग्रेट करते हो तो x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो आता है ना, तो यही आता है, जिसका इस्तेमाल कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जब ये इंटीग्रेट होगा ये इक्वेशन, तो E इक्वल्स टू के सिग्मा 2 पाई एक्स अपॉन, अगर 2 से 2 कट गया तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, के सिग्मा पाई एक्स 0 से a। अब लिमिट रखना है, इंटीग्रेट हो गया कितना आएगा बोलो, t पे पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू दिस, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हियर एट द प्लेस ऑफ n इज -3/2, इट मीन्स -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, ओके, एंड द लिमिट इज 0 टू a। Don't worry, be happy. E equals to k sigma pi x, and after solving this, what do you get? -3/2 plus 1. It means t to the power -1/2, and here in denominator also -1/2. So what do you get? And the limit is 0 to a. So E equals to k sigma pi x, and this is -2 upon t to the power 1/2. How? Because this is -1/2, so it goes in denominator and written as t power half, 0 to a. अब जो आपने t माना था यहाँ पे इस्तेमाल कर, इंटीग्रेट हो चुका ना, अब जो t माने हो उसको इस्तेमाल कर दो, या तो फिर लिमिट चेंज करके रखो। तो लिमिट चेंज करना आपके लिए झंझट होगा, डायरेक्ट t का रख दो अब वैल्यू x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे t रख दो, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, खत्म कहानी। आ गया आपका k सिग्मा पाई x, ओके, और -2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 1/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। एक बार a रखो अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, यही तो रखते हो आप। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का खेल आप आपके पास है, पूरा मैथमेटिक्स मैंने बोला उसी स्टेप के बाद से है। तो k सिग्मा पाई x, ठीक है, अब लिमिट रख दो, कोई बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं। अगर आप a रखेंगे तो -2 अपॉन, r की जगह रखना, r वेरिएबल था, याद करो r dr था, ठीक है, इसलिए r की जगह रखना है, ये ध्यान रखना होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 1/2। अपर में से लोअर को माइनस करते हो तो कोई यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन, अब लोअर लिमिट रखोगे तो ये देखो r की जगह 0 रख दोगे,
क्या रख दोगे आर की जगह? 0 रख दोगे। ठीक है, अगर आर की जगह 0 रखोगे तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर का रूट एक्स आएगा 2/x, है ना, 2/x। चलो भाई, ये पूरी कहानी आपकी हो जाएगी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 2 जो है कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 2/x हमको लग रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से x भी कॉमन ले सकता हूँ अगर चाहूँ तो अगर इसमें से x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा कि सिग्मा पाई x, और नीचे से देखो मैं दोनों में से अगर x कॉमन लेना चाहता हूँ, देखो यहाँ -2, और नीचे अगर इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो x बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे रूट है 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो बाहर x निकलेगा। तो बाहर x निकला, इसका मतलब अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ। 1 + a² पे पावर 1/2 प्लस 2/x। ठीक है, तो 2/x पूरा का पूरा बाहर ले लो, काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। आप देखिएगा, अगर आप यहां से 2/x पूरा का बाहर ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? E = ठीक है, पहले से ही के था, सिग्मा था, पाई था, x था, और साथ में अब 2/x और बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा ध्यान देना। देखो ये +1 है तो पहले लिख लो 1/2/x, जब बाहर आ गया तो यहाँ पे +1 बचेगा और ये माइनस रहेगा, -1/रूट में लिख सकते हो, 1/2 का मतलब रूट में होगा 1 + a²/x²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कहाँ पे? किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू द होल डिस्क। अभी देखो कुछ लोग जा रहे हैं, x से x जाएगा, तो ये टोटल आपको आएगा के सिग्मा पाई 2k कह सकते हो, 2k सिग्मा पाई 2 को पहले लिख देते हैं 1 - √1 + a² + x²। ये आपका E हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर आप k की वैल्यू रख दिया जाए तो और काम आसान हो जाएगा, 1/4πε0। तो एक और सिंपल वे मिल जाएगा आपको कैलकुलेट करने का, 2 × 1/4πε0 सिग्मा पाई, बाकी सब क्या होगा 1 - 1/√1 + a² / x²। अब इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर ले जाओगे तो और आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 2 कट जाए तो सिग्मा अपॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपको आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ के बाद से E जो आ जाएगा σ/2ε0, है ना, और जो ब्रैकेट में था वो ब्रैकेट में रख लो, 1 - 1/√, में क्या 1 + a²/x²। ठीक है, तो ये था पूरा कैलकुलेशन। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, अगर कोई समस्या नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। ठीक है, तो जब भी आपको टॉपिक ये सब पढ़ने हैं तो अब ये कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें कैसे मैं निकाल रहा हूँ एरिया, कैसे ये आ गया फार्मूला KQ x/x² + r² 3/2 रिंग की वजह से, तो ये सारे टॉपिक आपको पीछे जाके पढ़ने होंगे, तब आप तुरंत बता दोगे ये एलिमेंटल रिंग जो माना उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो KQ/x² + r² 3/2 होती है। तो पीछे की चीज़ों को पढ़ने के लिए पूरा वीडियो आप देखिए जाके, ठीक है, आपके लिए बहुत आसानी होगा। ठीक है, चलिए।